ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ आशुतोष जी? एक बार डागा जी इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो डागा जी। डागा जी सेमिनार स्टार्ट कर दिया मैंने। डागा जी आप सेल्फ म्यूटेड है। ये अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ आशुतोष जी, अब आप 2 मिनट बता दें सेमिनार के वेबिनार के बारे में और फिर इनवाइट करते हैं हमारे को। हम वेलकम एड्रेस करेंगे, फिर आदित्य को इनवाइट कर देना। वेलकम एवरीबॉडी। ये आज का सेमिनार एक्सेल ट्रेनिंग पे है, क्योंकि अपने को एक्सेल हर जगह पे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भले कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर ले लें, अपने को एक्सेल तो डिटैच नहीं कर सकते अपन अपने वर्क के साथ में। तो ये सेमिनार कंडक्ट किया गया और सीए आदित्य बिरला करके हैं ये अब यहाँ से आज पूरा सेमिनार लेंगे। ओवर टू यू डागा जी। Thank you, Ashutosh. A very good morning to all of you. Respected today's learned speaker, Sri Aditya Bidla, Senior Member of the Profession, Executive Member of Tax Bar Association Jodhpur, Member of Webinar Team, Sri Ashutosh Sharma, Sri Rohit Jain, Sri Ankit Malani, and all my Member of Tax Bar Association Jodhpur. It is a matter of immense pleasure for me to interact my all professional colleagues through this digital platform webinar. Today's topic is financial statement using Excel. Friends, after COVID-19, this is the best way to update ourselves on the topic of professional interest. Our today's topic is also very much useful in this present scenario, as we all know that in this current situation, we should perform our work through the maximum use of technology, which is much safe for our health point of view. Our learned speaker, Sri Aditya Bidla, has an experience of around 8 years in working of corporate environment. He has worked in many corporates like Reliance Security, Tata AIG Insurance, Global Financial Services, etc. He look after mainly budgeting, forecasting, financial planning, and reporting of internal controls and systems, implementation and information of financial. I, CA VP Daga, President Tax Bar Association Jodhpur, welcome our young and dynamic personality, Sri Aditya Bidla, on my personal behalf and behalf of Tax Bar Association Jodhpur, for sparing his valuable time for all of us. Friends, I am very much sure that Aditya Bidla will elaborate Excel tools which will very much benefit for all of us while conducting our professional work. Thank you very much, all of you. Thanks. Over to you to Ashutosh. Thank you so much, Dadaji. Now, request Aditya ji to please proceed with your presentation. Thank you. Thank you, Ashutosh, and thank you, VP Daga sir, for such a great introduction. So this is my first webinar. I don't have any experience in webinars. तो अगर कोई गलती हो जाए तो you can point it out to me later on. You can connect with me later on. So Excel बहुत basic tool है और I'll keep my webinar in Hindi so that if there is any problem with communication तो वो नहीं है, linguistic barrier नहीं है. तो एक्सेल बहुत बेसिक टूल है और बहुत कॉमन टूल है, ये सब जगह आपको मिलेगा. एंड द रीजन एक्सेल इज सो मतलब वेल रिकग्नाइज्ड और सो यूज्ड इज बिकॉज ये बहुत सिंपल है. कुछ भी करना और एक्सेल में कुछ भी मॉडल प्रिपेयर करना बहुत सिंपल है. और हम लोग आज एक बहुत छोटा सा मॉडल देखेंगे. सो वी विल डिस्कस 3-4 फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला देखेंगे और कैसे हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं.
सो दैट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटेड हो सके और आपके पास में एक डेटा का प्रॉपर ट्रेल रहे कि आपने अगर कुछ भी एडजस्टमेंट पास ऑन करे हैं या कुछ भी चेंजेस करे हैं तो वो आपको इजीली ट्रेसेबल हो सके, कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो प्रॉपर ट्रेस हो सके, और मैनुअल इंटरवेंशन जितना कम हो सके वो हम लोग ट्राई करेंगे। तो जो 3-4 फॉर्मूलाज हम लोग ट्राई करेंगे, आई डोंट नो बाय, जस्ट अ सेकेंड, पावर पॉइंट क्लोज हो गया है, I don't know, so I will start the PowerPoint again. So जो 3-4 फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे, I don't know why PowerPoint is behaving this. हाँ, जो 3-4 फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक है समिफ, दूसरा समिफ, तीसरा राउंड, और वीलुकअप मैं यूज करूंगा सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए कि क्या वीलुकअप में प्रॉब्लम्स आती है जो आप लोग समिफ या समिफ्स के थ्रू रिमूव कर सकते हो। एंड आई एम अज्यूमिंग के जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको वीलुकअप का आइडिया है, अगर नहीं हो तो आप लोग मेरे को मतलब मेंशन कर सकते हो, तो आई विल एक्सप्लेन वीलुकअप आल्सो। तो स्टार्टिंग विद कमिंग ऑन माय एक्सेल फाइल जो मैंने प्रिपेयर करा है, तो फर्स्ट आई विल गो विद राउंड। राउंड बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसका सिंटेक्स देखोगे तो ये बोलता है कि आपको कितना नंबर चाहिए, मतलब कितने डिजिट तक का कौन सा नंबर है जो आपको राउंड ऑफ करना है। सो आप जो भी नंबर सेलेक्ट करोगे और फिर यू हैव टू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है कि कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पॉजिटिव प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद का कितना डिजिट्स, और नेगेटिव प्लेसेस मतलब वो टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेगा। तो अगर मैं उसको यहाँ अप्लाई करूं और मैंने ये नंबर सेलेक्ट करा 1.47589 और मैंने उसको 0 दिया, या जैसे मैंने रेफरेंस के लिए ये कॉलम डी दिया, तो इट विल राउंड टू 0 डिजिट्स। अगर आप 2 डिजिट डेसिमल में देखना चाहेंगे तो इधर 0 दिखा, सिमिलरली यहाँ पे 2 दिखा, फिर यहाँ पे 2 दिखेगा। और जब मैं इसको नेगेटिव में यूज करता हूँ तो ये -1 मीन्स ये मेरे को टेंस में राउंड ऑफ कर रहा है, -2 मीन्स ये मेरे को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहा है, और -3 मीन्स ये मेरे को थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहा है। इसका यूटिलाइजेशन हम लोग बैलेंस शीट में कैसे कर सकते हैं? बैलेंस शीट में काफी बार हमको ये प्रॉब्लम्स आती है कि जब हम लोग नंबर्स लिंक करते हैं हमारे नोट्स में, और नोट से जब वो बैलेंस शीट में फ्लो होता है तो मेरा डेसिमल्स में कभी ना कभी राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम रहती है, और इसीलिए हमको कई बार बैलेंस शीट में कास्टिंग्स करना पड़ता है, +1 कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, -1 कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस +1 -1 की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आप राउंड 0 तक यूज कर सकते हो। तो दैट वे आपका जो डेसिमल पॉइंट्स है, तो अगर मैं इन दो नंबर का समेशन लूंगा तो मेरा समेशन will appear as like 2.95, ठीक है। बट अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लूंगा तो मेरे को समेशन प्रॉपर 2 दिखेगा। तो मेरा बैलेंस शीट में जो डेसिमल्स की वजह से कास्टिंग की प्रॉब्लम होती है वो आपकी राउंड से रिमूव हो जाती है, और इसीलिए ये इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है, बट मैंने मेरे इस सेशन में कवर करा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, तो समिफ इज द सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लोली जाऊंगा। तो बेसिकली समिफ करता क्या है? समिफ आपकी कोई रेंज है या आपका कोई डेटा है, उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर एक सिंगल कंडीशन से सम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर एक कंडीशन मीट हो तो मेरे को ये सम चाहिए, तो उसके लिए समिफ यूज होता है, ठीक है। तो समिफ का बेसिक अगर आप सिंटेक्स देखोगे, मैं मेरा स्क्रीन थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं सो दैट आप लोगों को सिंटेक्स दिखे। सो समिफ का अगर आप बेसिक सिंटेक्स देखोगे तो सबसे पहले आपको देखना रहता है कि आपकी जो रेंज है, क्राइटेरिया रेंज, वो क्राइटेरिया रेंज कौन सी है। आई गेस ये थोड़ा सा एक्सेल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा सबको, पर बहुत यूजफुल है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब म्यूट पे रहें। तो सबसे पहले मेरे को समिट में देना रहता है कि क्राइटेरिया रेंज, कि मैंने जो
फॉर्मूला लगाया है उसमें सम जो लगाना है वो किस रेंज से लगाना है, और उस रेंज में मेरे को क्या क्राइटेरिया चाहिए, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मेरे को सम कौन से कॉलम का चाहिए। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। तो आपको यहाँ नहीं समझ आएगा, मैंने पीछे एक टेबल बना रखा है, उधर मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझा पाऊंगा। तो ये हमारा एक रॉ डेटा है। सो रॉ डेटा में हमने डे वाइज सेल्स ली है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 7 days। उसमें मैंने अराउंड 26 सेल्स पर्सन है, सब जो A to Z करके, एंड ईच सेल्स पर्सन इज सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, ब्रेक्स भी सेल कर रहा है, टायर भी सेल कर रहा है, क्लच भी सेल कर रहा है, और रेंडमली मैंने एक नंबर डाल दिया कि सेल्स वैल्यू क्या क्या है। तो अब अगर मेरे को चाहिए कि मेरे किस किस सेल्स पर्सन ने 7 दिन में कितना सेल करा है, तो वो सम इफ के थ्रू मैं बहुत इजीली कवर कर सकता हूँ। सो मेरा फॉर्मूला कैसा लगेगा, जैसे सम इफ, सबसे पहले मैंने बोला क्राइटेरिया रेंज, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज विल बी दिस, कि मेरा जो नेम वाला रेंज है वो नेम के बेसिस पे सम चाहिए। तो मेरा नेम रेंज इज द क्राइटेरिया रेंज। उसमें से मेरे को क्राइटेरिया क्या चाहिए, मेरे को क्राइटेरिया चाहिए बी, कि बी ने कितना सेल करा है, और फिर मेरा सम रेंज हो गया मेरा सेल्स अमाउंट। सो दिस वे यू कैन जस्ट इंसर्ट सम इफ, और आपको बी का सेल्स मिल जाएगा कि बी ने टोटल सेल्स 2,16,000 का करा है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके एक फिल्टर लगा के अगर बी का टोटल सेल्स चेक करता हूँ, सो बी का टोटल सेल्स इज 2,16,883, जो कि मेरे को सम इफ में विजिबल है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नीचे बॉटम बार में आपको दिखेगा कि बी के सम रेंज क्या है। सिमिलरली जब मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करके नीचे लूंगा, तो मेरे को A to Z जितने सेल्स पर्सन है सबका टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो ये मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। तो मैं सम इफ और सम इफ्स का पहले इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। दैट वे आपका बैलेंस शीट जो है वो बहुत इजीली बन जाएगा, और इनिशियल फर्स्ट टाइम जब आप इसको अडॉप्ट करोगे तब आपको शायद टाइम ज्यादा लगे यूजुअल से, बट विद ईच टाइम, विद एवरी टाइम व्हेन यू विल प्रिपेयर इट, आपका टाइमिंग जो है वो कम से कम होता जाएगा, एंड मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा तो एरर भी कम होंगे। सिमिलरली अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, तो मैं सिंपल एक सम इफ लगाऊंगा। अभी मेरा क्राइटेरिया रेंज कॉलम डी हो गया, तो मैंने कॉलम डी सिलेक्ट करा, उसमें से मेरे को क्राइटेरिया चाहिए टायर्स, तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, और सेल्स रेंज मेरा फिर से सेम है, तो मैंने सेल्स रेंज सेम सेलेक्ट करा, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मेरा टायर्स का सेल आ गया, उसको मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट वाइज सेल आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो मेरा टोटल सेल यहाँ पे भी 57,07,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी 57,07,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी 57,07,000 दिख रहा है। तो दैट वे आई कैन ऑलवेज चेक कि हाँ मेरा जो सम इफ है वो प्रॉपर पुल हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल्सो एक कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ये कि आपका जो क्राइटेरिया रेंज है और आपका जो सम रेंज है, उन दोनों का रेफरेंस वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 to 185 लिया है, और तो मेरा ये सम रेंज वाला भी 3 to 185 होना चाहिए। अगर एक में भी रेंज ऊपर नीचे हुआ तो मेरी वैल्यूज प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो फॉर्मूला प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इस एरर को या तो आप रेंज सेम डालिए, अगर इसको अवॉइड करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रो वैल्यूज दीजिए ही मत, आप सिर्फ कॉलम स्पेसिफाई करिए और अपना क्राइटेरिया स्पेसिफाई करिए, ऑटोमेटिकली वो सम प्रॉपर ही पुल करेगा, रो की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। सिमिलर वे में सम इफ का एक और एग्जांपल मैं कवर करता हूं कि मेरे को अगर डे वाइज सेल चाहिए तो आई कैन ऑलवेज गो फॉर के अब मेरा जो क्राइटेरिया रेंज हो गया वो डे हो गया है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट कॉलम ए पूरा, देन मेरे को क्राइटेरिया ये चाहिए डे 2, और फिर मेरे को सम रेंज में चाहिए सेल्स अमाउंट। तो दैट वे यू विल सी कि मेरा जो डे वाइज सेल है वो भी पूरा प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो गया। तो सम इफ अगर आपको सिंगल क्राइटेरिया कुछ भी वैल्यू चाहिए तो सम इफ आपका यूज आता है, और इसमें सिंटेक्स जैसा मैंने पहले बताया,
कि आपको सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज लेना है, उसके बाद में क्राइटेरिया लेना है और फिर सम रेंज लेना है। एंड एक जो प्रॉब्लम आती है रो नंबर वाली, वो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप या तो रो नंबर स्पेसिफाई करें तो दोनों का सेम स्पेसिफाई करें, आपके बेसिक रेंज का और आपके सम रेंज का, क्राइटेरिया रेंज का और सम रेंज का। और अगर नहीं तो आप दोनों में से रो स्पेसिफाई करें ही ना, और आप एज इट इज इसको प्रॉपर पूरे कॉलम सेलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट डाउन नीचे कर सकते हो, तो वो भी प्रॉपर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर इसी में सम इफ का क्या यूटिलाइजेशन है कि ये मेरा हुआ सिंगल यूसेज, कि अगर मेरे को एक क्राइटेरिया चाहिए तो मैंने सम इफ ले लिया, ठीक है। बट अगर मेरे को मल्टीपल क्राइटेरिया अगर चाहिएगा कि भाई मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा डे वाइज और प्रोडक्ट वाइज क्या सेल हुआ है, कि डे 1 को मेरा ब्रेक्स का सेल कितना हुआ, टायर्स का सेल कितना हुआ, क्लच का सेल कितना हुआ, सिमिलरली डे 2 को तीनों का सेल कितना हुआ, डे 3 को कितना हुआ, या मेरे किस किस सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करे हैं, मतलब जैसे ए ने ब्रेक्स का कितना सेल करा है, टायर्स का कितना सेल करा है, क्लच का कितना सेल करा है, तो वो अगर मेरे को देखना हो तो सम इफ्स कैन बी द फॉर्मूला। तो सम इफ्स का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सम इफ के कंपैरिजन में, एंड इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट देन सम इफ आल्सो, क्योंकि सम इफ में अगर आप देखोगे, सम इफ में आप देखोगे आपने क्राइटेरिया रेंज पहले सेलेक्ट करा था क्योंकि उसमें सिंगल क्राइटेरिया था। सम इफ के अंदर आपको सम रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो वॉट एवर विल बी योर सम रेंज, आपको सेल्स अमाउंट चाहिए आप सेल्स अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, आपको परचेज अमाउंट चाहिए परचेज अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम चाहिए तो उसका अमाउंट आप पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जिस कॉलम का आपको सम चाहिए वो आप सम रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आप क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज 1, फिर उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया 1 का टोटल क्राइटेरिया 1 कौन सा हुआ, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर उसमें क्राइटेरिया 2 कौन सा हुआ, और एज लॉन्ग एज आप जितने क्राइटेरिया इसमें डालना चाहें उतने क्राइटेरिया आप डाल सकते हैं। द पॉइंट इज के अगर क्राइटेरिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए तो आपको सम रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर क्राइटेरिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो ये 0 रिफ्लेक्ट करेगा। सम इफ वी लुकअप के जैसे कोई एरर शो नहीं करता है, या सम इफ और सम इफ वी लुकअप के जैसे कोई एरर शो नहीं करते। अगर दोनों क्राइटेरिया साथ में मैच नहीं होंगे तो ये आपको 0 शो करेगा, और दोनों क्राइटेरिया साथ में मैच हो जाएंगे तो ये आपको प्रॉपर सम दे देगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैंने सिमिलर वही रॉ डेटा पीछे रखा है, वही मेरा डे वाइज सेल है, उसमें मेरा सेल्स पर्सन का नेम है, प्रोडक्ट टाइप है, और ये मेरा सेल्स अमाउंट है, सिमिलर सेल्स अमाउंट है 57,07,000 का। सो एज इट इज वही टेबल में यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ए ने ब्रेक्स का कितना सेल करा, ए ने टायर्स का कितना सेल करा, ए ने क्लच का कितना सेल करा, सिमिलरली डे वाइज ए का सेल कितना है, सिमिलरली डे वाइज प्रोडक्ट का सेल कितना है। तो आप कोई भी दो पैरामीटर्स लेके जितने क्राइटेरिया आप डालना चाहें उतने क्राइटेरिया आप डाल के वो देख सकते हैं, जितने पैरामीटर्स आप डालना चाहोगे उतना रिफाइन होके आपको ये आपका रिपोर्ट दिखेगा। तो इसका सिंटेक्स कैसे लगेगा, सम इफ्स, आप सब लोगों को विजिबल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए सेल्स का, जो मेरे को सम का रेंज है, तो मैंने कॉलम ई सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को चाहिए क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 में मेरा नेम सेलेक्ट कर लिया। देन मेरे को क्राइटेरिया चाहिए कॉलम बी, मतलब सेल्समैन का नाम, ठीक है। उसके अंदर फिर मेरे को दूसरा क्राइटेरिया चाहिए मेरा प्रोडक्ट टाइप, और मैंने उस पर सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट का नेम। एंड एज सुन एज आई विल हिट एंटर, मेरे को बी ने टायर्स का ब्रेक्स का कितना सेल करा है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से फिल्टर करके जाऊंगा और यहाँ पे बी, और बी में यहाँ पे ब्रेक्स सेलेक्ट करूंगा, तो बी ने मेरा ब्रेक्स का 60,000 का सेल्स करा है, 60,870 का सेल करा है, वो 60,870 का सेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 60,870 का सेल है, एंड दैट सेम विल बी विजिबल टू यू हियर आल्सो।
अब इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा तो 0 दिखाएगा क्योंकि मेरे रेफरेंसेस सारे हिल गए हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जो मेरी प्रॉपर रेंज है टोटल वाली उनको तो फ्रीज कर सकता हूँ, और जो क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरियाज में मैं जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे फ्रीज कर सकता हूँ। तो इसमें मेरे को क्राइटेरिया चाहिए कि मेरा कॉलम फ्रीज होना चाहिए, मेरी रो फ्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो मेरा बी से सी, सी से डी, डी से ई मूव होना चाहिए। एंड सिमिलरली मेरे को प्रोडक्ट में चाहिए कि मेरा कॉलम नहीं, मेरा रो फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा तो भी रो 3 मेरा फ्रीज रहेगा। तो जैसे ही मैंने इधर रो फ्रीज करा और इधर कॉलम फ्रीज करके एंटर मारा, तो ये मेरा तो सम प्रॉपर दिख ही रहा था, टायर्स का भी सम प्रॉपर आ गया, क्लच का भी सम प्रॉपर आ गया। टोटल बी का सेल इज 2,16,883, और वो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो 216,883 मेरे को दिख रहा है। और अभी जब ये प्रॉपर मैंने फ्रीज कर दिए हैं और उसको मैं जैसे ही नीचे पेस्ट करूंगा तो मेरे को सारे सेल्स पर्सन का प्रोडक्ट वाइज डिटेल आ जाएगा, ठीक है। एंड अब देखोगे मेरा ओवरऑल सेल जो 57,07,000 का था वो मेरे को प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है, और मेरे को हर एक का दिख रहा है। अब सपोज करो कि मैंने बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ नहीं होना चाहिए, तो सपोज करो कि मैंने बी फिल्टर करा और बी में मेरे को लगा कि ब्रेक्स की सेल बी ने करी ही नहीं और वो सारी टायर्स हो गई। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने टायर्स की जगह पे ब्रेक्स करा, ब्रेक्स की जगह पे टायर्स करा, तो इसने मेरे को ऑटोमेटिकली ब्रेक्स का सेल 0 दे दिया। दैट वे मेरा जो सेल्स है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि बी ने ब्रेक्स का सेल बिल्कुल ही नहीं करा, तो जहां बी है वहां ब्रेक्स नहीं होगा, और जहां ब्रेक्स है वहां पे बी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ये वी लुकअप में अगर ऐसा होता तो वी लुकअप ने यहाँ पे एरर दे दिया होता, बट समिफ आपको एरर नहीं देता, समिफ हमेशा 0 वैल्यू देता है। तो अब अगर मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करूंगा तो मेरा सेल वापस चेंज हो गया और मेरा प्रॉपर टायर और क्लच का। और आप एक चीज और देखो, जैसे ही मैंने बी में यहाँ पे ब्रेक्स को जैसे मैंने टायर्स में कन्वर्ट करा तो मेरी टायर्स की सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई, और क्लच बढ़ गया क्योंकि क्लच का सेल वैल्यू एग्जैक्टली सेम रह गया, और टोटल सेल्स अमाउंट मेरा फिर भी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। द रीजन इज कि वो समिफ उसको प्रॉपरली पुल कर लेता है, इसलिए आपने एक बार अगर फॉर्मूला प्रॉपरली लगा दिया तो आपको वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपडेट करता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे किस सेल्समैन ने डे वाइज कितना सेल करा है, तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला। अब इसमें आप देखोगे कि मेरा G5 की जगह मेरे को यहाँ पे M5 चाहिए, और रादर मैं एक बार पूरा फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। समिफ मेरा सबसे पहले सम रेंज, सबसे पहले मेरा सम रेंज विच विल बी दिस कॉमा, फिर मेरे को क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने इधर, चलो मैं डे वाइज सेल को पहले क्राइटेरिया दे देता हूँ, तो उसमें मेरा क्राइटेरिया हो गया डे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं नेम वाइज को सेकंड क्राइटेरिया दे देता हूँ, तो ये नेम वाइज मेरा हो गया सेकंड, और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो डे वाइज सेल मेरे को बी का दिखने लग जाएगा, और जो मैंने फ्रीज नहीं करा है वो मैं फ्रीज कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको आगे पेस्ट करूंगा तो मेरे को बी का भी डे वाइज ट्रेंड दिखेगा कि बी ने किस किस डे को कितना कितना सेल करा है। सिमिलरली अगर इसको मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉपरली सारा पर्सन का सेल दिखेगा डे वाइज। और आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा जो, अगर मैं कॉलम इंसर्ट करके जैसे देखूं कि ये दिस माइनस दिस करके देखूं तो आपको दिखेगा कि एवरी पर्सन का जो सेल है मेरे को वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे हम लोग पर्सन का डे प्रोडक्ट वाइज सेल देख रहे थे, यहाँ पे पर्सन का डे वाइज सेल देख रहे हैं। तो दैट वे ये ऑटोमेटिकली चेक भी हो गया कि मेरा जो सेल है वो प्रॉपरली दिख रहा है, और मैं डे वाइज सेल भी देख सकता हूँ। अब सपोज यहीं पे मैं बोलूँ कि बी ने डे वन में कोई सेल नहीं करा और ये यहाँ पे डे 2 होता,
तो आप यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से आपको दिखता कि बी ने डे 1 में कोई सेल नहीं करा है और डे 2 ऑनवर्ड्स उसकी सारी सेल दिखती है आपको। सिमिलरली इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ डे वाइज प्रोडक्ट वाइज। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी क्राइटेरिया रेंज पहले सेलेक्ट करो, उससे समिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्राइटेरिया के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो वो क्राइटेरिया रेंज प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली मैंने जैसे थर्ड इम्प्लीकेशन चूज करा है कि अभी मेरे को फिर से सम रेंज देना है, तो सम रेंज मैंने जैसे यहाँ पे फिर से कॉलम ई दे दिया। अभी क्राइटेरिया रेंज में मैंने पहले प्रोडक्ट वाला रेंज पहले सेलेक्ट कर लिया और मेरा प्रोडक्ट रेंज में क्राइटेरिया क्या हो गया, मेरा ब्रेक्स, सो दैट आई विल फ्रीज हियर। और फिर दूसरा मेरा क्राइटेरिया हो गया डे, और डे में मैंने डे 2 को यहाँ फ्रीज कर लिया एंड डे 2 को यहाँ मैंने फ्रीज कर लिया। और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मेरा डे का जो सेल है वो भी आपको दिखेगा। तो डे 2 में मेरा जो ब्रेक्स का सेल हुआ वो 270 है, टायर्स का 281 है और क्लच का 257 है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे उसको पेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि मेरी टोटल सेल प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है। और मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इसको मैं अगर रेस्पेक्टिवली देखना चाहूँ कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगर मैं देखूँ कि ब्रेक्स का टोटल सेल जो है वो 1934,489 है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरा ब्रेक्स का टोटल सेल है जो 1934,489 है। टायर्स का टोटल सेल 1799 है, टायर्स का टोटल सेल 1799 है और क्लच का सेल जो है वो मेरा 1973,741 है, विच इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर दो मैच हो गए तो तीसरा मैच होगा ही, टायर्स का सेल मैच हो रहा है। और अगर मैं डे वाइज भी मैच करना चाहूँ तो डे 1 का जैसे मेरा 779 का सेल है, तो इफ यू विल गो हियर एंड जस्ट गो डाउन, ये 779 का आपको सेल दिखेगा। तो ये इन फॉर्मूलाज का यूटिलाइजेशन हुआ कि आप किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इनको यूज कर सकते हो और आपका सम जो है वो आप जितने क्राइटेरिया है, जितना क्राइटेरिया है, जितना एक सिंगल क्राइटेरिया है तो सम डालोगे उतने क्राइटेरिया के बेसिस पे सम देगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो वो जीरो रिफ्लेक्ट करेगा, वी लुकअप के जैसे एरर थ्रो नहीं करेगा। और इट कैन बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि काफी बार आपको कई रिपोर्ट्स बनानी होती है, उसमें आपको मल्टीपल सिचुएशंस देनी होती है, उसके बेसिस पे आपको ये चीज अप्लाई करना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे यूज आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक पहले कुछ स्टेप्स दिखाता हूं, फिर उसके बाद में उन स्टेप्स का मैं इम्प्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे है। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस और आप चाहते हो कि वो जितना ऑटोमेटेड हो उतना ऑटोमेटेड दिखे, तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू क्रिएट इज कि आपको ट्रायल बैलेंस का आइटम वाइज एक क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप ये चीज यूज करोगे तो आपको क्लासिफिकेशन क्रिएट करने में टाइम लगेगा, बट वंस दैट क्लासिफिकेशन इज डन तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इजीली करा जा सकता है। क्लासिफिकेशन क्रिएट अगर आप टैली यूज कर रहे हो तो टैली में आपको हर एंटिटी के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टैली में हर एंटिटी के लिए जीएल्स अलग अलग क्रिएट होते हैं या जो लेजर्स क्रिएट होते हैं वो नेम वाइज क्रिएट होते हैं। बट अगर आप कोई ईआरपी यूज कर रहे हो तो हर लेजर का एक जीएल कोड होता है और वो जीएल कोड सारी एंटिटीज के लिए सेम रहता है। इवन इफ मल्टीपल एंटिटीज में अगर आपका एक सेम डेटर है सेम पैन नंबर से, तो उसके लिए आप सेम कोड नंबर क्रिएट कर सकते हो हर एंटिटी में। तो जब वो सेम कोड क्रिएट होता है तो ईआरपी एनवायरनमेंट में आप एक सिंगल क्लासिफिकेशन मैपर बना लोगे, तो वो सिंगल क्लासिफिकेशन मैपर विल आल्सो बी यूजफुल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइम जब भी आप ये बनाओगे तो आपको एक वो क्लासिफिकेशन मैपर बनाना पड़ेगा। फिर वो क्लासिफिकेशन मैपर को जितनी बार आप आपके फाइनेंशियल में ट्रायल बैलेंस पेस्ट करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मेरा क्लासिफिकेशन एक मैपर बना रखा है क्योंकि मैंने टीबी जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली का यूज करा है, तो मैंने एक ही क्लासिफिकेशन मैपर बना रखा है
तो इसमें मेरे पास में जो भी ये मेरे डमी अकाउंट्स है, चाहे डेटर है चाहे क्रेडिटर है, तो कौन सा अकाउंट मेरा किधर जाएगा उसका एक मैपर बना रखा है कि भाई ये ट्रायल बैलेंस में उसका ये नेम है और ये उसका बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन है। तो दैट वे मेरा जितने आइटम्स है सबका एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा एंड दिस क्लासिफिकेशन विल बी यूज्ड एज अ बेस। इसको हम लोग एज अ बेस यूज करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैल्यू पुल करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट वर्क जो आप करते हो वो आप करते हो, आपने ट्रायल बैलेंस पेस्ट करा, ठीक है, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया, एक एंटिटी का मैंने बना रखा है डमी ट्रायल बैलेंस। तो मैंने जितना डिटेल ट्रायल बैलेंस हो सकता है उतना डिटेल ट्रायल बैलेंस लिया है एंड फॉर माय कन्वीनियंस मैंने एक चेंज इसमें ये करा है कि जो क्रेडिट बैलेंसेस है उनको मैंने नेगेटिव में शो करा है और जो डेबिट बैलेंसेस है उसको मैंने पॉजिटिव में शो करा है, सो दैट उनका जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्शन जाएगा वो वैसे जाएगा। मान लो अगर कोई क्रेडिट लाइन आइटम में ट्रेड पेबल्स है और ट्रेड पेबल्स में कुछ पेबल्स ऐसे हैं जिनका डेबिट बैलेंसेस है, तो इधर आई विल हैव टू, या तो मुझे उसका एक रिक्लासिफिकेशन पास करना पड़ेगा या मैं ट्रेड पेबल्स को नेट करके दिखाऊंगा। तो दोनों में से जो भी केस में यूज करूंगा मेरा वो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइनेज में चेंज नहीं करूंगा तो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ईआरपी एनवायरनमेंट में ब्रॉडली जो ईआरपीज आइडेंटिफाई करते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे ही करते हैं कि क्रेडिट को वो नेगेटिव शो करते हैं, डेबिट्स को पॉजिटिव शो करते हैं। तो दिस इज वन थिंग आई हैव डन इट मैनुअली, पर आप उसको करना चाहे नहीं करना चाहे आप वैसे भी देख सकते हैं, उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहिएंगे तो आप डायरेक्ट इस कॉलम ई के बेसिस पे भी आप अपने बैलेंस शीट में या नोट्स में नंबर्स पुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव क्रेडिट्स को नेगेटिव दे दिया और डेबिट्स को पॉजिटिव दे दिया। और उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे ये एक मैपिंग करके एक कॉलम क्रिएट करा है। सो व्हाट आई डिड इट इन मैपिंग इज, मैंने जो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन बनाया है इस क्लासिफिकेशन का ही मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया। तो इफ आई विल अप्लाई दिस वी लुकअप, और वी लुकअप मेरा ये आइटम है और इसको मैं यहाँ से वी लुकअप करूं तो जो मैंने मैपिंग ऑलरेडी दे रखा है वही मैपिंग यहाँ पे पुल होगा। तो आप जैसे चाहो, अब जो वहां पे आइटम नहीं है उसके लिए NA आ जाएगा, तो दैट यू नीड नॉट वरी। बेसिकली उस केस में भी आपको क्या करना है मैं बताऊंगा कि अगर कुछ NA आ जाता है, कोई आइटम नया ऐड होता है तो उसका क्या आपको उसका कैसे आपको डील करना है। तो जैसे ही मैंने ये VLOOKUP लगाया, आई गेस दिस आइटम इज नॉट देयर, तो मैं इसको, ठीक है, इसको मैं बाद में जब वो दिखाऊंगा तभी आपको दिखा दूंगा। तो ये VLOOKUP लगाने से मेरा, अब ये मैं VLOOKUP आपको इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि जब भी आप हर टाइम एक फ्रेश ट्रायल बैलेंस पेस्ट करोगे तो आपको हर बार ये क्लासिफिकेशन मैन्युअली नहीं डालना पड़ेगा। योर दिस क्लासिफिकेशन फाइल विल बी यूज्ड एज अ बेस, और आप जैसे ही वो VLOOKUP लगाओगे आपका VLOOKUP लगाने से ऑटोमेटिकली आपके क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे। ओनली जो न्यू आइटम्स रहेंगे जो आपके इस फाइनेंशियल ईयर में या इस क्वार्टर में ऐड हुए हैं उनको आपको उस क्लासिफिकेशन में ऐड करना रहेगा। तो जैसे मैंने अभी ये लगा दिया, आई गेस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ये एक मेरा उधर जैसे एडिट नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आपका क्लासिफिकेशन, आपने एक बार जैसे फर्स्ट टाइम जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब आपने एक क्लासिफिकेशन कर दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको जो क्लासिफिकेशन का टेबल आपने बना रखा है उससे एक सिंपल VLOOKUP लगाना है। और VLOOKUP लगाने के बाद में आपको जस्ट कुछ नहीं करना, जो भी आइटम्स आपके नहीं दिख रहे हैं आपको, जैसे ये हमको नहीं दिख रहा है, तो जस्ट वी हैव टू ऐड इट इन हियर। आप बेस में यहाँ ऐड कर दो उसको, और उसको आपको जैसे मान लो अदर करंट लायबिलिटीज देना है, आप जैसे इधर अदर करंट लायबिलिटीज दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
सिमिलरली मेरा एक और आइटम शायद नहीं दिख रहा था, वो शायद रिजर्व एंड सरप्लस था, उसको भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिखने लग जाएगा मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ कि मैंने एक क्लासिफिकेशन मैपर क्रिएट कर दिया और उस मैपर को मैंने यूज करा और यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन पुल कर लिया। नाउ व्हाट विल बी योर सेकंड स्टेप? आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके सम इफ या सम इफ जो भी आपको यूज आए वो लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सम इफ लगाया, सम इफ में मेरे को क्या चाहिए, जैसे ये मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का शेड्यूल है, तो आई नीड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का जो अमाउंट है वो मेरे को यहाँ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सम इफ लगाया और मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में गया। ट्रायल बैलेंस में मैंने कॉलम जे सेलेक्ट करा, बेसिकली जो मेरा मैपर या जो भी मैंने क्लासिफिकेशन पुल करा है, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चाहिए और फिर मैंने सम रेंज डाला। तो सम रेंज मैंने जैसे ही नेट क्लोजिंग बैलेंस डाला है, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसका अमाउंट मेरे को इधर पुल हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम इसमें मेरे को अभी भी दिख रही है कि नेगेटिव में पुल हो रहा है, तो मैं सिंपली आगे जाके ये समिट में एक माइनस का साइन लगाऊंगा, तो ये मेरे को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे अपीयर हो गया एंड यू विल सी कि ये मेरा बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। तो मैं जैसे ही बैलेंस शीट में जाता हूँ ये मेरे नोट से लिंक्ड है, तो ये मेरे नोट्स की टोटल इधर जो आ रही है वो मेरे को ऑटोमेटिकली उधर अपीयर हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो अगर ये फॉर्मूला नेगेटिव शो करता है तो ये मेरे बैलेंस शीट में भी नेगेटिव शो करेगा। तो वो ईआरपी एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे मैंने इसको क्रेडिट डेबिट को माइनस प्लस में चेंज करा है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप जहां पे क्रेडिट्स में सम इफ लगाओगे उधर आपको आगे एक माइनस साइन इंसर्ट कर देना है, ताकि लायबिलिटीज में प्रॉपर अपीयर हो और एसेट्स एसेट साइड में प्रॉपर अपीयर हो। ठीक है, अब इसमें मान लो मेरे को कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करना हो, तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करूंगा? तो सपोज करो मेरा ये ट्रायल बैलेंस है तो 9438 का अमाउंट आ रहा है, बट आई वांट टू रीक्लास के भी 5 लाख रुपए मेरे जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उससे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में मेरे को रिक्लासिफिकेशन करना है। क्योंकि सी आप कितना भी एडवांस सॉफ्टवेयर ले लो, टैली ले लो, चाहे ईआरपी ले लो, आप एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आप बैलेंस शीट बनाने बैठोगे, जब आप फाइनेंशियल्स लेके बैठोगे, तो देयर विल बी सम एडजस्टमेंट जो आप हर टाइम बुक्स में नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या है जैसे ईआरपी एनवायरनमेंट्स में पीरियड क्लोजिंग का भी एक टाइमिंग नोट होता है कि आपने अपना पीरियड कब क्लोज करा था या क्या है। तो हर एडजस्टमेंट आप हर बार शायद नहीं पोस्ट कर सको। कई बार ये भी होता है कि मैनेजमेंट आपको बोलता है, जैसे मैंने कॉर्पोरेट्स में काम करा है तो मैंने वहां देखा है कि सीएफओ कम्स और वो बोलता है कि नहीं एक ही एडजस्टमेंट पास ऑन करना बाकी रह गया, ये एडजस्टमेंट आप पास ऑन कर दो। तो वो एडजस्टमेंट के लिए आप पूरा ईआरपी का या टैली का पीरियड ओपन करके वापस एंट्री पास करके फिर वापस फ्रेश ट्रायल बैलेंस नहीं ले पाते हो। तो वो सारी एंट्रीज या कुछ भी आपको फाइनेंशियल में चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑलवेज डू इट थ्रू दिस एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस एडजस्टमेंट एंट्री में आपको क्या करना है, हमने जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस लिया ईआरपी का और एक ये एडजस्टमेंट डाला, तो एडजस्टमेंट भी जो आपका ये क्लासिफिकेशन मैपर है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करा कि जैसे एक एडजस्टमेंट पास करा कि मेरे को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को क्रेडिट करना है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को डेबिट करना है और एक 5 लाख रुपीस का एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एक एंट्री पास ऑन करी और जैसे ही मैं यहाँ पे सम इफ लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को रेंज क्या लेनी है, ये रेंज लेनी है कि मेरे एडजस्टमेंट एंट्री का कौन सा रेंज है। उसके बाद में उसका किस बेसिस पे मेरे को सम करना है और फिर सम का मेरा जो सबसे लास्ट में सम रेंज कौन सा है। तो जैसे ही मैं ये देख के एंटर मारूंगा तो मेरा 5 लाख रुपीस यहाँ पे आ गया, 5 लाख रुपीस यहाँ पे हो गया। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो एडजस्टमेंट पास ऑन करना है वो मेरे को मैन्युअली नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली हो गया। एंड ऐसे मान लो आपको 10 एडजस्टमेंट भी पास करने हैं तो आप 10 एडजस्टमेंट भी पास ऑन कर सकते हो। लाइक सपोज करो मेरे को एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग से क्रेडिटर्स में कुछ मूव करना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स डाल दिया
तो ये मेरा ट्रेड पेएबल्स है, ये मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग से यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स डाल दिया। और मान लो मेरे को 2 लाख रुपए से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कम करना है और ट्रेड पेएबल्स बढ़ाना है, तो सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे एंट्री पास ऑन करके मैंने जो यहाँ पे सम इफ डाला हुआ था, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये 3 लाख रुपीस का एडजस्टमेंट दिखने लग गया। तो इसने ऑटोमेटिकली ये 5 लाख का क्रेडिट भी पिक कर लिया, ये 2 लाख का डेबिट भी पिक कर लिया, और नेट जो 3 लाख रुपीस है वो यहाँ पे दिखा दिया। और अब यही चीज मैं जब यहाँ पे नीचे जाके ट्रेड पेएबल्स में पेस्ट करूंगा, तो वो 2 लाख रुपीस का जो ट्रेड पेएबल्स में एडजस्टमेंट है वो भी ये ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। तो दैट वे जितने भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पास ऑन करना चाहते हो, बीट 1, बीट 2, 5, 10, 15 जो भी है, जो आप इंस्टेंटली सिस्टम में नहीं पेस्ट कर सकते हो, वो आप एक्सेल में एक टेबल बना के पोस्ट कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल्स एक बार के लिए फ्रीज कर सकते हो, और फिर लेटर ऑन जब भी आपके पास में टाइम हो वो एंट्रीज आप सिस्टम में पुश कर सकते हो। तो दैट वे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा 3 लाख रुपीस का एडजस्टमेंट है और ये 9738 है, ये मेरा नोट्स में ऑटोमेटिकली 9738 दिखने लग गया, और मेरे को इसमें कुछ भी अलग से मैन्युअली नहीं करना पड़ा। तो ये मेरा एक वे हुआ। इसमें मैं कितने भी एडजस्टमेंट्स डाल सकता हूँ, कुछ भी ट्रायल बैलेंस में से मेरे को मतलब चेंज करना है, डेबिट क्रेडिट कोई भी एडजस्टमेंट है। सपोज करो मेरे को एक रिक्लास एंट्री मारनी है, जैसे ये मेरा अदर करंट एसेट्स में जाना चाहिए, तो ऑल्दो अभी तो मैंने इसका मैपर अदर करंट एसेट्स में कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और बट अगर सपोज करो नेक्स्ट टाइम अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं इसका अगर ये क्लासिफिकेशन सिर्फ चेंज करूंगा, जैसे अगर मैंने सपोज करो इस आइटम का क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लासिफिकेशन चेंज करूंगा आप देखोगे कि मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होके बैलेंस शीट में भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी क्लासिफिकेशन भी चेंजेस करने पड़े तो आप कर सकते हो। दैट वे भी ये आप इसी मैपर में सिर्फ आपको एक क्लासिफिकेशन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस शीट में पूरा टू एंड फ्रो जो ट्रेल है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको मैन्युअली कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। दैट वे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रायल बैलेंस पे फोकस करना है और उसके क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। ठीक है, इसी में मैं जैसे अगर एक चीज आपको और बताऊं कि जैसे कई बार हमको प्रेजेंटेशन कुछ और डिटेल्ड करना, तो डिटेल मतलब जैसे ये मेरा अनसिक्योर्ड लोन्स है, अब इस अनसिक्योर्ड लोन में ये नेम वाइज मैंने मेरे को प्रेजेंटेशन करना है, तो वहां पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सम इफ की जगह पे सम इफ्स लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सम इफ्स लगाऊंगा और सबसे पहले सम रेंज देना है, तो कॉलम H इज माय सम रेंज, ये मेरा सम रेंज हो गया। और इसके अंदर फिर मैं जाऊंगा नोट्स के अंदर। अब सम रेंज के बाद में सबसे पहला मेरे को देना है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने दे दिया कॉलम J to J, और उसमें मैंने क्राइटेरिया दे दिया मेरा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, और इसको मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को चाहिए कि मेरे को अगला क्राइटेरिया क्या देना है, मेरे को अगला क्राइटेरिया देना है नेम वाइज। तो मैं सिंपली यहाँ से ये A to A फिल्टर सेलेक्ट करूंगा कॉलम, और इसमें मेरे को क्राइटेरिया देना है नेम। तो जो मेरा A to A में नेम है वो ये ट्रायल बैलेंस का नोट्स 835 में है, ये एक्चुअली आगे लग गया। क्राइटेरिया सम रेंज, देन ये क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, और अभी आपको इसमें क्राइटेरिया देना है। तो आप सिंपली चलो ये क्राइटेरिया मैंने जैसे ही सेलेक्ट करा इसको पेस्ट करोगे तो ये CH में जो मेरा अमाउंट दिख रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो CH में जो मेरे को 2279 दिख रहा है वो आपको यहाँ शो करेगा। और इसमें भी मैं जैसे बोल रहा था कि नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप माइनस आगे यूज कर सकते हो, और जब आप इसको नीचे पेस्ट करोगे तो सबका जो भी अमाउंट है वो आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो दैट वे अगर आप देखोगे कि मेरा किस किस का क्या क्या है,
तो मेरा जैसे ये टोटल 69 है और यहाँ पे मेरा कुछ किसी एक का शायद सही नहीं दिख रहा है, CHJ 22 1966, NJ is 339 749। एक इसमें शायद ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये मेरा NJ जो है वो डबल आ रहा है और वो दोनों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ही है। तो इसने NJ का टोटल जो है पूरा ले लिया। तो मैं एक बार के लिए जैसे इसको चेंज कर देता हूँ, इसको NAJJ कर देता हूँ और इसको भी NAJJ कर देता हूँ। ओके, इसका मैपिंग चेंज हो गया। तो ये मेरा जो 187 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिख रहा था वो 187 मेरा यहाँ पे दिखने लग गया। तो ओनली थिंग इस मेथड में जो आपको कंसर्न होना चाहिए, जो आपको फोकस करना है, वो आपको फोकस करना है आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर और उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन के ऊपर। बाकी जो डेटा का ट्रेल है वो ऑटोमेटिकली चलेगा और आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मेरा 7409 का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिख रहा है और आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो ये आपको 7499 ये भी एक कुछ और भी शायद ठीक है, पीजे का भी एक शायद चेंज हो रहा है। फाइल फिल्टर इट हियर और इसको भी चलो PAJ बोल दूं और इसका भी मैं अगर चेंज करूं और यहाँ पे तो ये जो मेरा 69 65 दिख रहा है, आप अगर ट्रायल बैलेंस में जाके भी चेक करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 69 65 826 ही दिखेगी। So that way only thing where you will have to make changes or amendments is in trial balance, मैं वो भी via adjustments या जैसे भी आपको करना है और आपको फोकस सिर्फ आपके क्लासिफिकेशन कॉलम पे मेनली करना है कि ये सही दिखना चाहिए। ये सही दिखेगा तो आपका सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होगा। अब दूसरी बात जो मैं आपको बोल रहा था कि हमने राउंड फॉर्मूला डिस्कस करा था, तो राउंड का क्या यूटिलाइजेशन होगा इस एनवायरमेंट में कि जब मैं यहाँ पे आगे राउंड लगा दूंगा और राउंड लगा के और कॉमा 0 कर दूंगा तो दैट वे मेरा जो डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पे इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने इधर भी राउंड लगाया और अगर मैंने इसको 0 करा तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे राउंडेड ऑफ नंबर आएगा। तो मेरा जो बैलेंस शीट नंबर्स पुल होंगे वो भी सारे के सारे राउंडेड ऑफ पुल होंगे। तो सारे के सारे जब राउंडेड ऑफ पुल होंगे तो जो डेसिमल की वजह से मेरा कास्टिंग एरर आता है, ठीक है, वो कास्टिंग एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दैट वे भी आपको जो हमेशा टोटल्स में प्रॉब्लम आती है या हम लोग प्रिंट आउट्स लेके जब चेक करते हैं कि भाई टोटल सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, कास्टिंग एरर होती है तो हम लोग उसको चेंज करके वापस प्रिंट आउट लेते हैं। तो दिस विल सेव, ये हमारा भी बहुत टाइम बचाएगा और एनवायरमेंट के लिए पेपर भी बहुत सेव करेगा। और इसमें एक चीज और जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि सिमिलरली आप किसी भी जगह पे कोई भी, जैसे अगर मैं बोलूँ सेम फॉर्मूला को मैं अगर P&L के नोट्स पर लगाना चाहूँ तो P&L के नोट्स के अंदर जैसे मेरे को मान लो सब लगा के मान लो रेवेन्यू में लगाना पड़ा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी मैं सम इफ लगा सकता हूँ। सम इफ जैसा मेरे को समझ में आए, सम इफ जैसे यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस सम इफ ट्रायल बैलेंस, ये मेरा मैपिंग हो गया और मैपिंग में से मेरे को क्राइटेरिया चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर ये मेरा ट्रायल बैलेंस में सम रेंज हो गया कॉलम मैच। तो अब अगर आप इधर देखोगे तो ये 0 शो करेगा। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें नोट 16 आगे लिखा हुआ है, बट यहाँ अगर मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा तो मेरा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हुआ है। तो ईदर आई कैन डू वन थिंग कि मैं या तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको कॉपी करके नोट्स के अंदर या तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो मेरा प्रॉपर दिखेगा, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और इधर जो नोट A122 से लिंक करा है मैंने उसकी जगह पे मैं इधर से लिंक कर सकता हूँ
और अगर दोनों चीजें नहीं समझ में आती तो मैं डबल कोट्स में वो डायरेक्ट टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। तो जब मैं डबल कोट्स में डायरेक्ट टेक्स्ट डालूंगा तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली फिगर पुल करके देगा। तो दैट वे आपका एक बार आपको डबल कोट्स में डायरेक्ट टेक्स्ट डालोगे तो वो फॉर्मूला एक बार लगाने में आपको थोड़ा सा डिटेल टाइम ज्यादा लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो अ वे जिसमें आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला कि नेगेटिव में है तो आप आके एक नेगेटिव लगा के और राउंड लगा के और 0 लगा सकते हो। तो जो मेरा प्रॉपर नंबर है डेसिमल्स हटा के वो आपको दिखेगा और बैलेंस शीट में भी आपको वही नंबर दिखेगा। और अब अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस से चेक करना चाहो तो यहाँ से अगर मैं टोटल चेक करता हूँ तो वो टोटल भी प्रॉपर्ली दिखता है। अब अगर मेरे को इसमें कोई एडजस्टमेंट भी पास ऑन करना है, सपोज करो मेरे को रेवेन्यू को डेबिट करना है और मे भी चलो एक डमी कोई एंट्री पास करनी है जिसका सिर्फ रेवेन्यू पे ही इम्पैक्ट जाएगा। तो जैसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं, तो मैंने रेवेन्यू को मान लो मेरे को 5 लाख रुपए से या 10 लाख रुपए से कम करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए डालूंगा और रेवेन्यू को डेबिट दिखाऊंगा और डमी अकाउंट में एक बार के लिए 10 लाख क्रेडिट दिखा दूंगा, बट वो डमी अकाउंट मेरा आगे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दिस इज बेसिकली एन एडजस्टमेंट कि जो मैंने करा है रेवेन्यू कम करने के लिए। कई बार होता है कि काफी एडजस्टमेंट होते हैं जिसका सिंगल साइड इम्पैक्ट जाता है, तो सिंगल साइड इम्पैक्ट दिखाने के लिए। तो अब मैं जब यहाँ पे आके सम इफ लगाऊंगा और सम इफ में मेरे को रेंज लेनी है ये, और इसके अंदर मेरे को क्राइटेरिया चाहिए ये, और मेरे को अमाउंट लेना है ये। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा 10 लाख रुपीज आपको यहाँ आ जाएगा, आपका 10 लाख रुपए से रेवेन्यू कम हो गया। तो वो यहाँ पे कम होते ही फ्रंट आपको नोट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नोट से सीधा पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पीएनएल से आपके अगर कैश फ्लोज अगर लिंक्ड है तो वहां पे भी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि इस फॉर्मूला को आप मल्टीपल प्लेसेस पे खींच मत लेना, क्योंकि जहां पे आपका क्लासिफिकेशन सेम है वो सारे क्लासिफिकेशन में सेम अमाउंट को पुल कर लेगा। तो जैसे मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 7 बार आ रहा है तो मेरे को एक जगह पे कहीं पे ये एडजस्टमेंट लगाना है सो दैट मेरे एक्सेल में वो प्रॉपरली दिख जाए और यहाँ पे आके प्रॉपरली दिख जाए। नहीं तो जितना आप उसको ड्रैग डाउन कर लोगे उतना आपका पीएनएल में इम्पैक्ट आ जाएगा और वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल को नहीं मालूम है कि आपको सिर्फ 10 लाख का एडजस्टमेंट करना है, आपको 20 लाख का नहीं करना। वो तो फॉर्मूलाज के बेसिस पे जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। तो आई गेस मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है। आशुतोष आई गेस अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लोग वो ले सकते हैं अब। और मेरे को लगता है मैंने थोड़ा मोनोटोनस ज्यादा हो गया तो आप लोग बोर ना हुए हो, मैं ये प्रे करूंगा। हेलो नहीं आदित्य जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बार के लिए अनम्यूट करता हूँ सबको, अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर किसी के भी क्वेश्चंस कोई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज में टाइप कर सकते हैं। और मैं वो आदित्य जी को फॉरवर्ड करके आपको उसका रेजोल्यूशन भी पास ऑन कर दूंगा। हेलो प्रवीण जी। हेलो। अपनी साइड से तो मैं ये कहूंगा कि इट वाज एक्चुअली वेरी प्रिसाइज एंड प्रोडक्टिव। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं प्रवीण जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रोसीड कीजिए। थैंक यू। जी प्रवीण जी आ रही है। आदित्य जी बहुत ही अच्छा एक्सेल का किया है, ये हम को भी बड़ा इजी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से किया है और इनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो भी नई एजुकेटिव टीम एक्चुअली ये जानना प्रीति के जो लीडर है एजुकेशन की। और प्रवीण जी आपकी आवाज थोड़ी ब्लर हो रही है। आ तो रही है बट काफी गूंज रही है।
प्रोसीड कीजिए। तो बाकी सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए वेबिनार अटेंड करने के लिए और क्या चाहिए? थैंक यू। Thank you so much, Praveen ji. Thank you, Aditya ji, for the elaborative session. It was actually very required. जोधपुर में अपने को भी एक्सेल की काफी रिक्वायरमेंट रहती है हर जगह पे, तो हम आपको आगे भी कभी परेशान करते रहेंगे, और किसी भी अटेंडी का कोई भी क्वेरी हुआ तो मैं जरूर आपको फॉरवर्ड करूंगा। सी आशुतोष, दिस इज ये बहुत बेसिक एक्सेल है, और मतलब मैंने बहुत एक्सटेंसिव देखा है, इससे एडवांस देखा है, एंड आई एम आल्सो ट्राइंग के जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, बिजनेसेस हो या मे बी मतलब सीए फर्म्स हो, तो आई एम ट्राइंग के जितना हो सके उतना हेल्प कर सकूं मैं उन लोगों को। एंड मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगा ये सेशन देके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी के मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकूं, शेयर कर सका बेसिकली। और किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और जस्ट गिव देम माय नंबर आल्सो कि भाई यू कैन कांटेक्ट आदित्य। थैंक यू Aditya ji. Thank you everyone Thank for you. attending the session. Thank you. Thank you.